Class, good afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon to all. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon to all. So before going to start the session, so as I'm also new for you all, so this is our first interaction. So first of all, I introduce myself. So all of you are getting my voice properly. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So before going to start the session, just I want to give you okay, so I just want to tell you about myself. Myself, Ashish Mitra. I belong to the Electronics and Communication Department, basically, and I have been allotted this particular lab, that is Electronics Lab. The code is 151P, KC 151P. So before going to start this lab, I just want to give you some basic intro about the electronics engineering. Clear that you all are studying a subject also in this particular semester. I think so. You all are studying a subject. Yes, So you sir. all are Yes, having the subject also sir. this semester. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We having the subject, Okay, okay. sir, but So अभी you all are class नहीं belong. हुई. So okay. So you all class नहीं हुई है. Okay. So okay. So class भी आपकी start हो जाएगी in this week. I think ये आपकी class भी होगी. So so I will discuss about the basics of the electronics engineering. Okay. So some experiments are linked with the theory topics also. So you will study in the particular subject related to this, and so I have just shared you on the Google Classroom. I think all of you are added now. I have sent you the link on the Google Classroom. All of you have added or not? Hello. So I am just asking you all have been added on the Google Classroom or not Sir, Yes, till I am now? not. sir. Sir, I am not Yes, added, sir. sir. Yes, In sir. electronic lab. Actually, I have sent you the link on your class group on the WhatsApp. So uh, also I have sent the class info regarding that particular lab. So class IT 11 के लिए दो class मेरे पास allotted हैं, IT 11 and 12 for both the classes, for IT 11 as well as IT 12. So so जो IT 12 जैसे आपकी class IT 12 है, so you all will be registered with the IT 12 class link. Kindly do not get interfere, yeah, do not get and add yourself into IT 11. So I have just sent the separate link. So kindly before going to add yourself, kindly check the class into that particular link. So if you visit the group again, I have sent the link. So those who Sir, have not been added, excuse me, sir. yeah, Sir, you send the link in which group, sir? your class group, that is IT 1112. You have been you all are added into the class group of your WhatsApp. So I have sent I think 4 to 5 days have been gone. So I have shared the link. So if you check that, check on the particular your class group, then you will find if somebody is having problem.
with the link. So I will share them. Okay, so those who have been added, do they all have visited the Google Classroom? And I have shared a file regarding the lab activity. So have you got the file? Class, Yes, have sir. you got the file which I Yes, sir. have Yes, sir. shared? The Sir, list of regarding lab experiments. experiment. Yeah, that is the list of experiment. So Yes, sir. We got it. okay. So I am also sharing the list of experiment through screen share. So just wait. I am just sharing. Just wait. I am sharing. Yes, sir. Okay. So I have shared you all. So kindly see your screen now. I think to all of you. Yes, sir. Yes, sir. I think it is visible to all of Yes, you now. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So if you go through, okay. Okay. So if we go an experiments, clear. So few of them are based on study based, clear. So and few of them are on kit based, clear. So if you visit on the page, so you can see some experiment means fourth onward, clear. We are having the kit based experiment, and starting three experiments are what that are related to the study based, clear. So in study based experiment, we will deal with the study of the components, study of the related technology which we will use, clear, related with the PCB boards, related with the observations like multimeter, function generator, power supply, passive component, active component, clear, breadboard, soldering, clear. So these are some related lab equipment. We will deal with that. So either the demonstrated video will be sent to all of you from the department, or the PPT that will help you to the in the understanding of the equipment related yeah, or we can say the lab related equipments, or the functions, clear. And you will be able to identify the various types of PCBs and then soldering techniques, clear, related to this particular lab, clear. Then active passive components you will get to recognize, clear. And then study about the CRO, multimeter, function generator, which are exactly used for what, to uh, measure the current, measure the voltage, measure the resistance, clear. So we will discuss later on. So in this today's lab, basically this is the first lab and first interaction with you all. So I will just discuss the lab relate the experiment details, as well as some basic info regarding this particular site as a lab. And in the next lab, one by one experiment. So today there is an interaction as well as some info regarding the lab, which I will be discuss. Getting my point. And in the next Yes, lab sir. onward, we will discuss one by one experiment. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So before going to start, you all have been studied some basic portion of the electronics. Clear? So I think most of you are not connected till now. I have shared the link also in the group regarding class. So the class code and ID and password will be same throughout for the lab. So
Those who are connected, kindly listen. The ID and password regarding this lab will be same throughout your lab. Clear? Throughout the session. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. actually I have shared. Yes, sir. Yeah. Actually, I have shared the. What about the rest? I think few more are not connected. Okay, so let me start with the basic info. So if you see, as I have told you that starting 3 experiments are study based, and then after 3 experiments, we are having the kit based experiment. Clear? So before going to discuss the detailing of the experiments, we just want to I just want to check about the about the basic information regarding electronics. So which अच्छा ये मुझे कुछ चीजें आपसे भी जाननी है. So जैसे अगर anyone have the answer, then they can respond me. जैसे have you heard about the, जैसे पहला ये experiment है, various type of active and passive component to study about various type of active and passive component based on their rating. So have anyone any idea about active and passive components? Have you heard about this active and passive components? No, sir. Okay. Nobody knows sir. about this. No, sir. Nobody No, knows sir. about this. Okay. So have you heard about linear and non-linear components? Linear and non-linear components. No, sir. लीनियर डिवाइसेस क्या होते हैं, कोई बताएगा? कभी सुना लीनियर डिवाइस क्या होता है? एनीवन? लीनियर डिवाइस? ओके. No, sir. No, sir. ओके. अगेन उसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, हैव यू हर्ड अबाउट द डायोड एंड ट्रांजिस्टर? Yes, sir. Yes, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, Yes, ये sir. सब तो सुना होगा ना? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. yes, sir. ओके. कोई डायोड डिफाइन करेगा? व्हाट इज डायोड? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज डायोड? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज द डायोड? डायोड के बारे में कोई बताएगा? डायोड सुना है? डायोड कैसे बनता है? हाउ वी कैन फॉर्म अ डायोड? In which electric current flows in only in one direction. In So one P direction. type Good. P type This is the and N type semiconductor जब जुड़ते हैं उसको कहते हैं डायोड जंक्शन के थ्रू. Dope. okay. So we have got two answer. Anyone else who want to say something? Hello, sir. Sir, it is two-terminal electronic component. Okay. So it is a two-terminal electronic component. Yes, sir. Okay. Anything else? कोई और बताना चाहेगा? Sir, Okay, so मैं इसको अच्छा correct ये करूँ। मेरा एक क्वेश्चन और है. It is a linear device or non-linear device? It is a linear device or non-linear device? Linear device. Okay. कोई और बताएगा ये linear है या non-linear है? You will be studied a basic मतलब एक जैसे कह सकते हैं ना, बेसिक बिना डायोड के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो सकता है. ठीक है ना? डायोड ही है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को डील कर रहा है एक तरह से. ठीक है, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया,
ठीक है, you all will study about the details of the diode, transistors, clear? डायोड में भी आप लोगों ने सिलिकॉन बेस पीएन जंक्शन पढ़ा होगा, सिलिकॉन डायोड, जर्मेनियम डायोड पढ़ा है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सुना है? Have you studied about silicon and germanium? Yes, sir, they are used for doping. Class. Have you studied about silicon and germanium? For doping, okay. Anyone else studied about subvalent and trivalent impurities? ये पढ़ा है? Doping. Yes, All sir. of you have studied about doping. Yes, sir. Sir, there are two type of doping, sir, intrinsic and extrinsic. Yes, Okay. sir. Intrinsic में, okay, intrinsic में क्या करते हैं? इंट्रिंसिक में किस तरह की डोपिंग करते हैं? इंट्रिंसिक में डोपिंग करते हैं या नहीं करते हैं? सर इंट्रिंसिक में कोई डोपिंग नहीं होती है, एक्सट्रिंसिक में ट्राइवेलेंट में डोपिंग होती है। पेंटावेलेंट। सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो डोपिंग की जाती है, मतलब डोपिंग इज अ प्रोसीजर इन व्हिच वी मिक्स द impurities in a semiconductor so that they can conduct the current. इंट्रिंसिक में डोपिंग नहीं करते हैं, है ना? आप हाँ लोग सर, के intrinsic अकॉर्डिंग में नहीं करते। you will Sir, you all are saying that Sir, extrinsic. okay, all of you are also इंट्रिंसिक में अगर डोपिंग नहीं करेंगे okay. तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं पा सकते हैं। हमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ अगर डोपिंग करेंगे इंट्रिंसिक का तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और सर पेंटावेलेंट करेंगे तो सर एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। Okay. So you all have some different opinions, clear? Most of you are having the same opinions, some of you are having different opinions. Okay. Intrinsic is a So pure intrinsic semiconductor, semiconductor and intrinsic intrinsic is the pure semiconductor. semiconductors ना। हाँ, Yeah. extrinsic में Intrinsic हम is लोग your जो pure डोपिंग, एक्सट्रिंसिक में हम लोग सर डोपिंग करवाते हैं। डोपिंग मतलब होता है मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज। Yes. देखिए बेटा, इंट्रिंसिक जो होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है जो कि विदाउट डोपिंग होता है, क्लियर? If you talk about individual intrinsic semiconductor, that is a pure semiconductor that is without doping. You are not doing any kind of doping. You are not doping का मतलब होता है you are not adding extra thing to the element to the particular intrinsic semiconductor. Clear? Intrinsic semiconductor is what प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर क्यों कहते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? इफ यू टॉक अबाउट द कैरियर्स, बिना कैरियर के हमारी करंट नहीं फ्लो करेगी किसी सिस्टम में, तो बोथ कैरियर कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। किस केस में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इज ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड होल्स इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? सो दोनों की संख्या अगर बराबर हो जाएगी तो ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ना होल एक्सेस में है, दोनों आपस में अगर टकराएंगे तो दे विल गेट न्यूट्रलाइज बाय द कोलिजन। उनकी संख्या बराबर है, 50% इलेक्ट्रॉन 50% होल, दे विल कोलाइड एंड दे विल मेक देम neutral. Clear? So in that particular case you will not having any kind of extra electron or extra hole which will remain. Clear? So जब कुछ बचेगा नहीं तो कभी करंट फ्लो ही नहीं करेगी सिस्टम में। Exactly, the concentration is equal. So that's why we need to perform the doping. इसीलिए हमें डोपिंग करनी पड़ती है। डोपिंग हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास दो तरह की डोपिंग होती है, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट, तो वी जस्ट परफॉर्म द एडिशन ऑफ ए ट्राइवेलेंट एटम या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी विद द प्योर सेमीकंडक्टर। जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है उसी में जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे
तो वो क्या बना देगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा, ठीक है। और अगर हम एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड कर, वो सॉरी, अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो वो उसको बना देगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर किसका पार्ट है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पार्ट। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Am I clear to all of you? Yes, sir. सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमको कब मिलता है, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग परफॉर्म करते हैं। If we perform the doping into the intrinsic semiconductor, then intrinsic semiconductor is converted into extrinsic semiconductor. डोपिंग दो तरह की होती है, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट में हम क्या करते हैं, ऐसा एटम ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में जो कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में +5 इलेक्ट्रॉन हो। वो 5 इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो वो 5 इलेक्ट्रॉन जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे वो हम ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फास्फोरस। हैव यू ऑल हर्ड अबाउट फास्फोरस? Yes, sir. फास्फोरस Yes, का sir. एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 15 होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15. So if you break it, so it will give you what, 285. So 5 is the outermost orbital electron. So इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाहर के ऑर्बिट में। जब आप इसको ब्रेक करते हैं 285 आता है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर मिल रहे हैं इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड दे विल व्हाट, इसी को अगर हम ऐड कर देंगे एग्जैक्टली, जब हम फास्फोरस को सेमीकंडक्टर के साथ ऐड कर देंगे तो इट विल मेक इट इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर? क्योंकि आपने एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी उसमें। क्लियर? वो प्योर था उसको आपने इम्प्योर बना दिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना? तो वो पी टाइप बन जाएगा, सॉरी एन टाइप बन जाएगा। और अगर आप उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जैसे एल्युमिनियम। Boron. एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13. 13 13 को ब्रेक करेंगे क्या आ जाएगा, 283 आएगा। 3 इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन उसमें क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है ना? जो सिलिकॉन होता है वो जर्मेनियम होता है, दोनों ही सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। इनको एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है ना? ये क्या करते हैं, ये सिंगल एलिमेंट है। ऐसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी होता है जिसमें हम दो सेमीकंडक्टर एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर को मिला के बनाते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड। इस पे अभी काम चल रहा है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर जब आ जाएगा तो आपका डिवाइस और फास्ट वर्क करेगा। जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं इस समय, जैसे मोबाइल फोन है या कुछ भी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब में आपका क्या लगा हुआ है, सब में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रही है ना, सब में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रही है। सो सब में आईसी लगी हुई है, सब में प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। ठीक है? तो जो हम प्रोसेसर डिजाइन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, इन्हीं सेमीकंडक्टर मटेरियल से करते हैं। दैट इज ऑल, इसका फैब्रिकेशन होता है तब ये आईसी फॉर्म करते हैं। ठीक है ना? आईसी कैसे बनती है, आईसी इज जस्ट फॉर्म बाय द फैब्रिकेशन प्रोसेस। ठीक है? फैब्रिकेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे पढ़ते भी हैं, एक सब्जेक्ट है वीएलएसआई डिजाइन, उसमें ये सब पढ़ते हैं कैसे हम लोग आईसी डिजाइन करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू डिजाइन ए आईसी। क्लियर? So we have a processors. Processor is totally designed by the semiconductor materials. Clear? So semiconductor जो material हैं, यही हमारा रोल प्ले करते हैं प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने में। ठीक है? डिवाइस की स्केलिंग हो जाती है, डिवाइस बहुत छोटे हो जाते हैं। ठीक है ना? पहले जो है ट्रांजिस्टर देखिए जब ज्यादा लगाते थे डिवाइस ज्यादा बड़ा हो जाता था। अब देखिए कितने छोटी छोटी आईसी प्लेट्स आने लगी हैं, छोटी छोटी प्लेट्स पे कितने सारे कंपोनेंट माउंट हो जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब डिवाइस स्केलिंग जिसको हम बोलते हैं। मोबाइल देखिए कितने छोटे छोटे हैं, आपके हाथ में कैरी कर सकते हो आप, ठीक है ना। सारे डिवाइस छोटे होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट स्केलिंग ऑफ द डिवाइस। क्लियर? सो ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट जो ट्राईवैलेंट है या पेंटावैलेंट है, इसमें क्या होता है? जो ट्राईवैलेंट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेमीकंडक्टर की आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के 3 से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन रह जाता है, क्योंकि जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी आपने ऐड करी है उसके आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे और सेमीकंडक्टर के पास 4 थे, ठीक है ना। इज इट क्लियर? जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 14 होता है एटॉमिक नंबर, तो 14 को ब्रेक करेंगे 284 आएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाते हैं, जो एक्सट्रिंसिक एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर का किसी से पेयर नहीं हो पाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं पेयर हो पाता है तो वहां क्या क्रिएट हो जाता है? होल क्रिएट हो जाता है। इट जस्ट क्रिएट ए होल। क्लियर? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसीलिए इसको एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहता है, क्योंकि वहां सेमीकंडक्टर के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन वाला आइटम आप ऐड कर रहे हैं, तो 5 में से 4 पेयर बन जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बन जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन लैटिस स्ट्रक्चर में घूमता रहता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट बोलते हैं। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को। जी Yes, सर। sir. ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा भी होगा, ये इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इसी डायोड की हेल्प से हम लोग ट्रांजिस्टर भी बनाते हैं। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? अगर हम दो डायोड बैक टू बैक कनेक्ट कर देते हैं तो ट्रांजिस्टर बन जाता है। इफ यू सपोज कनेक्ट 2 डायोड्स बैक टू बैक, देन इट विल फॉर्म ए ट्रांजिस्टर। जैसे ये देख सकते हैं आप, एक डायोड ये है, आई एम जस्ट शोइंग यू, दिस इज ए डायोड। एक मिनट, सपोज वी हैव ए डायोड लाइक दिस, ठीक है। एक डायोड हमने इसके पीछे ऐसे बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया, इट विल फॉर्म ए ट्रांजिस्टर, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस इज ए पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज एनपी डायोड, क्लियर। जिसमें ये बीच वाला एन कॉमन हो गया, सो इट विल अगेन फॉर्म ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। एन कॉमन हो गया ना बीच में, एन बीच में कॉमन हो गया, सो इट विल फॉर्म ए पीएनपी ट्रांजिस्टर, यस क्लियर। सर। This P is there, this N is there and this P is there, so it is a form PNP transistor. So अगर हम दो डायोड बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो ट्रांजिस्टर बन जाता है, क्लियर। सो दिस इज द पीएनपी ट्रांजिस्टर। ऐसे ही अगर एनपीएन की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट एनपीएन, क्लियर, एनपीएन भी हमको ऐसे मिल जाएगा। एनपीएन में क्या करना है आपको? देखिए, एक हमारे पास ये डायोड है, ठीक, और ये डायोड है। अब आप देख सकते हैं दिस इज एनपी एंड दिस इज पीएन, तो पी वाला पोर्शन हमारा कॉमन हो गया, क्लियर। तो इट विल फॉर्म अ एनपीएन, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, इज इट क्लियर? So here you can form NPN and PNP transistor. I think ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है, डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस, इसमें यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करती है, पहली बात, ठीक है। एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है, ठीक, क्लियर। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं, चाहे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, क्लियर, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज किया Yes, जाता sir. है, Yes, sir. सिलिकॉन को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सिलिकॉन टेम्परेचर, मतलब सिलिकॉन की टेम्परेचर बियरिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है एज कंपेयर टू जर्मेनियम, क्लियर। उसके अलावा हाँ, तो मैं लीनियर नॉन लीनियर की बात कर रहा था,
आप लोग सब्जेक्ट्स में तो डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। सो लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होते हैं? लीनियर डिवाइसेस वो होते हैं एग्जैक्टली हम कह सकते हैं जिनमें इनपुट और आउटपुट में लीनियर रिलेशनशिप हो। जैसे कि इनपुट में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो दैट चेंजेस शुड रिफ्लेक्ट इनटू द आउटपुट आल्सो साइमल्टेनियसली, तो इसको लीनियर कहते हैं, लीनियर डिवाइस। और नॉन लीनियर क्या होता है कि आपने इनपुट में कुछ चेंज किया लेकिन आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा है, या आउटपुट में इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम नॉन लीनियर डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ओम्स लॉ लीनियर, एक तरह से लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है, मींस वोल्टेज और करंट में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, ये सभी को पता होगा। पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. V is equal to IR, there is a linear relationship between voltage and current. So जैसे वोल्टेज आप बढ़ाएंगे वैसे करंट भी बढ़ेगा linearly. So there is a straight line curve, clear, between voltage and current, clear. So इसको लीनियर फॉर्म बोलेंगे, है ना। डायोड आपका नॉन लीनियर डिवाइस है। नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर का मतलब क्या है? Why I am saying it is non-linear? बताइए। Because sir, no change in output accordingly to input. No change. No, sir. वो sir, there is a change in output according to input. Not same thing will no relation between sir. तो मतलब Actually डायोड एक स्विच की तरह काम करता है। डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस एंड इट इज वर्किंग एज ए स्विच। स्विच जैसे ऑन ऑफ होता है, स्विच को आप लोग समझ रहे हैं ना, स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है, yes sir. ठीक है। ऑन ऑन कब होगा? जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, मतलब डायोड ऑन रहेगा। और जब डायोड रिवर्स बायस, Sir, you are not audible. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, Yes sir. Sir, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। आप सर आ रहे अच्छा हैं। अभी डिस्कट, okay, okay, some network issue was there. Okay, so what I was saying कि जैसे हमारे डायोड होता है, डायोड एज ए स्विच काम करता है। जैसे फॉरवर्ड बायस होगा तो आपका एक्टिव हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, रिवर्स बायस होगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सो जो आपका आउटपुट है वो एग्जैक्टली मींस कह सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वी ऑल नो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट in according to the Ohm's law, clear? So इसीलिए हम लोग इसको नॉन लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि लीनियर डिवाइस में क्या होता है, जिसका आउटपुट डायरेक्टली इनपुट के प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। और बल्कि डायोड में क्या होता है, आउटपुट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है इनपुट से, क्योंकि जो वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज आ रही है डायोड के क्रॉस, वो क्या है, एक्सपोनेंशियली फॉर्म्ड है।
क्लियर? एक डायोड का इक्वेशन होता है I is equal to I naught e की पावर v by eta vt minus 1. तो दिस इज ए डायोड रिलेशन, डायोड करंट रिलेशन. तो इसमें जो एक्सपोनेंशियल आप लोग पढ़ेंगे इसको सब्जेक्ट में, एक्सपोनेंशियल टर्म आता है इसमें. तो एक्सपोनेंशियल की वजह से आपका लीनियर रिलेशन फॉलो नहीं हो पाता है, तो इसीलिए ये नॉन लीनियर डिवाइस. ठीक है ना? तो चूंकि डायोड नॉन लीनियर है, सो ट्रांजिस्टर विल आल्सो बी नॉन लीनियर. एंड एक्टिव एंड पैसिव क्या होते हैं? व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट? एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन? क्लास आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what is active and passive component? जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन, पहला ही एक्सपेरिमेंट है, दैट इज स्टडी ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट. कोई बताएगा? सर एग्जांपल थोड़े बहुत पता है रजिस्टर, कैपेसिटर्स. सर. जैसे एक्टिव ट्रांजिस्टर, एक्टिव कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर्स आते हैं और पैसिव में से रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स ये सब आते हैं. तो जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो क्या एम्पलीफाई कर सकते हैं सिस्टम में? एम्पलीफाई करते हैं ना एक्टिव कंपोनेंट. हाँ सर. जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, टनल sir. डायोड हो गया, है ना? डायोड्स वगैरह हो गए. डायोड में भी टनल डायोड आपका एज आल्सो वर्किंग एज एन एक्टिव कंपोनेंट. पैसिव कंपोनेंट कांट इंट्रोड्यूस एनर्जी इनटू द सर्किट. ठीक है ना? या एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते. क्लियर? यस. जैसे आपका रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर्स हो गया, या है ना, ये सब आपके क्या है? पैसिव कंपोनेंट्स. क्लियर? यस. इज इट क्लियर? तो एक्टिव कंपोनेंट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई करता है एनर्जी को टू द सर्किट. सर्किट में एनर्जी को सप्लाई करता है. बट पैसिव कंपोनेंट डू नॉट सप्लाई एनर्जी टू द सर्किट और सिस्टम. क्लियर? So we will study this into the first experiment. Active and passive components we will see. The video will be shared to all of you. So you will got the information also. So now second experiment जैसे आपका है एक experiment, अभी मैं केवल overview दे रहा हूँ आपको, बाकी we will डिटेल में जो भी हम लोग देखेंगे इसमें. Second है आपका identification of various type of PCBs, means printed circuit board, and soldering techniques. Clear? So how can you identify various type of PCBs? PCB क्या होता है? जिसमें हम कंपोनेंट को माउंट करते हैं. On which we mount the components. जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ICs हो गई, ये सब PCB पे माउंट किया जाता है. इसको शोल्डर करते हैं हम लोग. ठीक है? सर एक क्वेश्चन पूछना था. यस. सर हम लोग को ये वाला सब्जेक्ट दिशांत सर पढ़ाएंगे? नहीं, शायद दिशांत सर तो नहीं है. तो सर हमारा जो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो कौन पढ़ाएगा? मतलब हमें बस उसी सब्जेक्ट के टीचर क्लियर नहीं हो कि उन्हीं की क्लास नहीं हुई है अभी तक, बाकी सब हो चुकी हैं. तो वो इलेक्ट्रिकल है बेटा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं. ये मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ. आई एम द फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो Okay, संजय sir. सर पढ़ाते हैं ना. संजय सर पढ़ाते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर डोमेन वाला वो Electronic. संजय सर पढ़ा. हाँ. हेलो. इलेक्ट्रॉनिक्स संजय मौर्य सर पढ़ाते हैं. Sir, ये Emerging domain. electronics की क्लास है. ये This is class of electronics lab. हाँ, आपको संजय सर शायद पढ़ा रहे होंगे. हाँ जी, हाँ जी. वो संजय सर पढ़ा रहे हैं. वो संजय सर पढ़ा रहे हैं. वो संजय सर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब. या ओके सर. या ओके. वो इलेक्ट्रिकल lecture है ये के class. शायद में भी दिशांत सर हो सकते हैं. ओके. ओके सर. Yeah.